Good morning, students. Now we're gonna learn a new chapter. Not new, the same chapter, but the second part of the chapter, that is probability. So 10th standard students, be alert. Okay, these are the holidays, summer holidays, but not holidays for you also. So we are just conducting a type of online vacations for you. So this is mathematics topic, probability. And in the previous lecture, we have seen that there are random experiments, there are events, there are outcomes. Okay, with that, there is probability also. So we have studied all these things. What is sample space? What are sample points? Okay, so let us have a look over all these things. रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है कि हम जो भी कोई चीज करते हैं जिसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं होने के, एक सीधा हम टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं और उसका हेड आएगा टेल आएगा, मतलब दो चांसेस. जो भी हम चीज करते हैं जिसमें कि कई सारे ऑप्शंस और चांसेस और पॉसिबिलिटी होते हैं, उस तरह के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. इट इज सो इजी, इट इज एज इजी एज इट सीम्स. ओके, नाउ let us see some random experiments for your syllabus. So when you toss a coin, so there are sample space of having two chances, two outcomes are there in the sample space. What is sample space? Sample space means the maximum number of outcomes. जो कुछ हो सकता है, तो उसमें दो, हेड या टेल. यहाँ बीच में ऑब्लिक के लाइन दी मैंने, हेड या टेल. So number of sample points are two only here. Now two coins are tossed. अगर हमने इस तरह के दो कॉइन अगर टॉस करते हैं हम, तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, यानी सैंपल स्पेस कैसा आएगा, तो इस तरह से आएगा. उसमें क्या क्या हो सकता है कि दोनों हेड आए, या तो पहला हेड दूसरा टेल आए, या तो फिर पहला टेल आए दूसरा हेड आए, या फिर दोनों टेल आए. इस केस में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 4 है. आर यू गेटिंग? एंड दिस वे वी आर हैविंग नेक्स्ट. Three coins are tossed simultaneously. See students, when the coins are tossed simultaneously or they are being tossed one by one, the outcomes are same for both the cases. Okay, in both the cases the outcomes are mentioned in same way. Okay, so when the three coins are tossed, we are getting such kind of outcomes. The maximum number of outcomes क्या क्या हो सकता है, तो यहां से हमने दिया है, ये दिख रहा है आपको यहां तक, वो 8 है. उसका अगर काउंट किया तो 8 आएगा. या तो तीनों हेड आएंगे, H4 हेड, या तो पहले दो हेड आएगा, बाद में एक टेल आएगा, एक हेड फिर टेल फिर हेड आएगा. ये भी इससे अलग है. बहुत लोगों को प्रोबेबिलिटी समझने में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर इसमें दो हेड है और इसमें भी दो हेड है तो फिर एक जैसा हो गया ना. बिल्कुल नहीं, ये दोनों में फर्क है. ये अगर पहले दो हेड है बाद में तीसरा टेल आता है तो ये वाली अलग केस बनती है इस केस से. ओके, अगेन पहला टेल आएगा, दूसरे दो हेड आएंगे, पहला टेल आएगा फिर हेड फिर टेल. इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएंगे, 8 तरह के केसेस बनेंगे. ओके, सो सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द मैक्सिमम आउटकम्स दैट आर पॉसिबल. ओके, सो दिस इज 8. नाउ अ डाई इज थ्रोन. व्हाट इज डाई? डाई मीन्स अ 6-sided cube is there, which we often play in some sapsidi like games. Okay, that snake ladder game you know well. In the snake ladder game, we just throw that die and we get some score out of it on the upper face, and that we call the score of the die. So when a die is thrown, there are only 6 chances of getting scores because it has only 6 scores on its 6 faces. Okay, so the faces are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इसमें से कुछ हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी होने के चांसेस नहीं है. अगर डाई फेंक दिया तो या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें से कुछ एक होने वाला है. दैट इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड सैंपल स्पेस. जितना कुछ हो सकता है, जितने कुछ आउटकम्स यानी रिजल्ट्स उसके. ओके, तो इतने आ सकते हैं. तो इस केस में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने? 6 है. आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड. नाउ व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, 1 डाई हमने एक फेंका है, अभी 2 फेंक दिए. When 2 dice are thrown, so what will happen? Same in case of head, tail, head and tail. Here also 2 dice are. So one will have 1 and second will have 1. First will have 1, second will have 2.
first will have 1 score, second will have 3 score on it. 1 4 1 5 1 6. अगेन पहले में 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 2 4, ऐसा कुछ भी आ सकता है। जितने भी आ सकते हैं वो सब हमने यहाँ पे लिख दिए अप टू 6,6 कि दोनों पर भी ऊपर 6 आए। 2 dice are thrown simultaneously on the floor or 2 dice are being thrown one by one. This is one and the same case as I told you in the case of coins also. This has no difference. This has no different value or no different sample space because both the cases are same, considered same. Okay, so let us see that these points, sample points are 36. Okay, this is called रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर जो दिखे ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है, ये उनके सैंपल स्पेस में क्या क्या आता है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स। ये सैंपल स्पेस है जिसको हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप उसको एक बार फिर से देखिए उस वीडियो को। ये सैंपल स्पेस है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मैं इसको फिलहाल RE लिखता हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और ये है सैंपल पॉइंट्स। ओके, सो इसको पहले पॉइंट्स बोलता हूं। इस तरह में 1 2 और 3 इस तरह के हमारे पास में 3 कॉलम्स है। ओके, नाउ व्हाट इज इवेंट। इवेंट को कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है वो लिखा है, लेकिन व्हाट वी नीड, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट वी आल्सो हैव टू कंसीडर, उसको बोलते हैं इवेंट। उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है कंडीशन। अभी कंडीशन क्या है, अगर मैं चाहता हूं 2 कॉइन्स टॉस करूं, 2 कॉइन्स टॉस करने के बाद मेरा कंडीशन ये है कि मुझे उसमें एक ही टेल मिलना चाहिए, ओनली 1। तो ओनली 1 टेल, ऐसे 2 ही केसेस में। कौन से है, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि इसमें तो 2 हेड है और इसमें तो 2 टेल है। इसमें हमें 2 टेल मिले। वी वांट एग्जैक्टली 1 टेल। हमें अगर एक ही टेल चाहिए तो ऐसे 2 केसेस है। हाउ मेनी, 2 केसेस। इस तरह के इवेंट को हम नाम दे सकते हैं। इवेंट ए डिनोट्स, उससे कंडीशन क्या है, गेटिंग एग्जैक्टली। हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए इवेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये इसी को टैली कीजिएगा, इसके लिए हम अलग ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन अगर टॉस किए जाते हैं तो उसमें से हमने एक इवेंट सेलेक्ट किया। उसकी कंडीशन क्या है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। ओके, नाउ हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन इवेंट ए। जिस तरह के पूरे NS में 4 है, लेकिन सिर्फ इस इवेंट में कितने हैं आपने देखा है, 1 और 2 है, 2 ही पॉइंट्स है, so it's 2 only। और NS is equal to 4, that we know। Okay, now probability of A, event A is equal to, इसको ऐसा लिखते हैं, P ब्रैकेट में एम्स का मतलब होता है कि probability of event A। इवेंट हमें पता है कि क्या है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। उसका सैंपल पॉइंट कितना आ रहा है कुल मिला के, NA मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, उसमें 2 है। ऐसे 2 ही चांसेस है कि जब क्या होगा कि 2 आएगा, सॉरी टेल आएगा अपर फेस के ऊपर। ओके, 4 में से 2 चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। Okay, so this is 2 by 4 that we calculate and make it 1 by 2. This is called the probability of event A. This is all about the chapter specially. किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से आप अपनी प्रोबेबिलिटी ढूंढ लीजिए इवेंट के मुताबिक, and then we calculate the final result in this way. Every time what will happen to you, that you may get it, you may just get it very clearly that the answer should be in fraction, a numerator and denominator form. Sometimes it is also mentioned in decimal fractions also. But right now for your consideration, we can think that that will be in only numerator and denominator form. Okay, so just note it down. We'll go through a next example again of different experiment. So हम दूसरा एक इवेंट लेते हैं दूसरे किसी के बारे में।